Welcome to Theme Writing Important Tips Part 1. In this discussion, we shall talk about a few important points which, when taken care of, help us to write a theme successfully. Theme Writing Important Tips पार्ट 1 की इस चर्चा में आपका स्वागत है। इस चर्चा में हम कुछ ऐसे बिंदुओं को देखेंगे जिन पर ध्यान देकर या जिनकी क्रियान्विति करके हम अपनी थीम राइटिंग को सफलतापूर्वक लिख सकते हैं। Students and scholars who wish to write a theme passage often face some difficulties in the process of writing successfully. They can take the help of these practical tips. When students begin to write, they usually land upon some problems which hamper their exercise of writing. जब स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स थीम राइटिंग लिखने बैठते हैं तब उन्हें कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे उनका लिखने का रुझान बाधित होता है। उसके लिए यहाँ पर कुछ बिंदु दिए जा रहे हैं जिन पर ध्यान दिया जाए तो लिखना संभव होता है और सफलतापूर्वक लिखने का जो क्रिया है वो संपन्न होती है। They can take the help of these practical tips. इसलिए स्टूडेंट्स इन कुछ व्यवहारिक बिंदुओं पर ध्यान दें। Think and decide the subject of the theme writing before beginning to write. Now, the first tip that a student should know is that before beginning to write, he should think and decide the subject or the content or the idea. जब स्टूडेंट लिखने बैठता है या जब आप लिखने बैठते हैं तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जिस विषय पर लिखना है, जिस प्रसंग पर लिखना है, उसे पहले निर्धारित किया जाए, उसके बाद उस पर लिखना शुरू किया जाए। This will help you be clear about your own thoughts even before you pick up the pen in hand. Now, before you pick up the pen in hand and your thoughts are clear, that makes you very confident of your beginning the exercise. यदि आपके मन में विचार या नक्शा स्पष्ट होता है, उसके बाद आप कलम उठाते हैं लिखने के लिए, तो आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप बहुत सफलता से लिख पाते हैं। इसलिए विषय वस्तु को या सब्जेक्ट को पहले निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। You will then follow the right track. Your mind too will be actively diverted to that direction. What happens is that when you are pre-decided on something, then the track that you follow is clear before you. And your mind also gets diverted in the right direction. जब आप लिखना आरंभ करते हैं और आपके मन में विषय वस्तु को लेकर के स्पष्टता होती है तो आपका मस्तिष्क भी उसी दिशा में चलने लगता है और आप बिल्कुल सही रास्ते को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। When the theme is based on a descriptive or narrative subject, choose only a single topic. This will be easy to handle and clear to write and read. One more tip is that when you write on a descriptive or narrative subject,
then you should choose only one topic, because description or narration is quite elaborate. It expands itself. For that reason, you should have only one single topic or one single theme in hand. Then it will be easy and possible for you to handle the topic. जब आप किसी भी विस्तृत विषय पर लिखना शुरू करते हैं या वृत्तांत बताने जैसे किसी विषय पर लिखते हैं, तो आपको सिर्फ एक टॉपिक लेना चाहिए. मल्टीपल थीम्स वाला एंगल आपका नहीं होना चाहिए. ऐसा इसलिए कि जब हम विस्तार से लिखते हैं या किसी चीज का वृत्तांत देते हैं, तो वो अपने आप में इतना फैला हुआ होता है कि उसको संभालना बहुत आसान नहीं होता है. एक होता है तो उसे संभाला भी जाता है और उस पर लिखते समय हम विषय से भटकते नहीं हैं. This will be easy to handle and clear to write and read. Now, this is easy to handle and clear to write and read. This is very important, because if the writer writes with clarity, then the reader reads it equally clearly. यह इसलिए आवश्यक है कि यदि लेखक लिखता स्पष्ट है, तो पाठक उसको उतनी ही स्पष्टता से पढ़ पाता है. Another tip is know your topic well. Gather knowledge about the subject. Think well at the initial stage itself. This will remove all the confusions at the beginning, and it will be easy to write smoothly afterwards. One important tip is that you should know your topic well. See, deciding a topic is one stage. आप जब विषय को निर्धारित करते हैं तो आप पहली सीढ़ी पार करते हैं. Then you should know your topic well, gather knowledge about the subject. Once you have decided your topic, you should gather knowledge or accumulate knowledge, information related to that topic. जब आप इस बात पर क्लियर हो जाते हैं कि हमें इस विषय पर लिखना है, उसके बाद उस विषय को पढ़िए, उसके बारे में ज्ञान अर्जित कीजिए और फिर उस पर लिखना आरंभ कीजिए. Think well at the initial stage itself. This will remove all the confusions at the beginning, and it will be easy to write smoothly afterwards. Now, you should think well at the initial stage. See, you have decided the topic. After that, you gather knowledge of the topic. आपने टॉपिक निर्धारित कर लिया और उसके विषय में जानकारी भी एकत्रित कर ली. Then, when at the initial stage you have thought that much, then all your confusions will be removed at the very outset. ऐसी स्थिति में आपके जितने भी विचलित करने वाले बिंदु हैं या जितने भी भ्रमित करने वाले बिंदु हैं, कंफ्यूजन कॉजिंग पॉइंट्स हैं, वो सब के सब आपके शुरू में ही निकल जाएंगे और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर या सही दिशा में चल पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टॉपिक and then gather knowledge of the topic and remove all the confusions at the very outset. इसलिए विषय को जानना, विषय के बारे में जानकारी एकत्रित करना तथा आरंभ में सारे के सारे भ्रमित करने वाले, कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स को पॉइंट्स को हटा देना, ये आवश्यक है. Another tip is do brainstorming. Think and go on writing down the thoughts as they come to the mind. The mind gets activated and many latent thoughts come to the surface. Now, another important point is that you should do brainstorming. Because when you do brainstorming, one after the other, the thoughts keep on coming to your mind and they come in a random fashion. आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, आपको बिना रुकावट के सोचने की क्रिया करनी चाहिए.
क्योंकि हमारे मन में विचार एक सुनियोजित क्रम में नहीं आते हैं। जैसे जैसे विचार आते जाएं, उन्हें आने दिया जाए। तो जब इस तरह से विभिन्नता में विचार आते हैं, या जैसे आ रहे हैं वैसे ही नेचुरल होने चाहिए, प्राकृतिक रूप से जैसे विचार आ रहे हैं वो हमारे आ जाने चाहिए। Think and go on writing down the thoughts as they come to the mind. The mind gets activated and many latent thoughts come to the surface. The virtue or the goodness of brainstorming is that it helps us to bring out our latent thoughts. जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमारे लेटेंट थॉट्स निकल करके आते हैं, हमारे सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए विचार भी बाहर आने लगते हैं। We have many things, many thoughts that are hidden in our mind or which are in a state of slumber, which are sleeping in our mind. Those sleeping thoughts, when they are at a latent stage, they are in a state of slumber, they get activated and they start surfacing. ऐसे विचार जो हमारे मन में पीछे कहीं खो गए हैं, हमारे मस्तिष्क में कहीं पीछे दर्ज हैं और वो आगे नहीं आ रहे हैं, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं, आगे आते हैं और फिर हमने जितना सोचा होता है उससे कहीं अधिक विचार हमारे पास आ जाते हैं और वो सारे विचार हमारे अपने ही होते हैं। Many thoughts flash for a while and disappear. Now another important point is that many thoughts, they flash and disappear. ये एक टिप बहुत आवश्यक है कि हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, बिजली की तरह आते हैं और चले जाते हैं, वो एक झलक मात्र दिखा करके चले जाते हैं। Write down the keyword immediately. The tip here is that as soon as a thought appears, we should write down the keyword of that thought immediately. जैसे ही कोई विचार हमारे मन में फ्लैश करता है, कौंधता है, अचानक से एक छोटी सी झलक के रूप में आता है, हमें उसका मुख्य बिंदु या एक मुख्य शब्द लिख लेना चाहिए। This will save you from losing the thought or forgetting it. Now, the virtue of this tip is, the benefit of this tip is that it will save you from losing the thought or forgetting it. What happens is that the thought flashes and it goes away. And very soon you tend to forget it. And then you keep on thinking, what was it that I was wanting, and it was something very important. So this is the functioning of our brain is such. In order to protect this loss, we can write down the keyword and save the thought. हमारे मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति होती है कि कोई विचार आता है, कौंधता है, चमकता है, फ्लैश करता है और अचानक से गायब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं बहुत अच्छा विचार था, क्या बहुत अच्छा पॉइंट था, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ऐसा हम मंथन करने लगते हैं। उस लॉस को सेव करने के लिए, उस क्षति से बचने के लिए यदि हम एक कीवर्ड लिख लेते हैं तो उससे हमें वो याद आ जाता है और हम लोग उस परेशानी से भी मुक्त हो जाते हैं कि क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था जिसे हम भूल चुके हैं, और साथ में हमारे अपने ही थॉट्स हमारे लिए बहुत रिच सोर्स बन करके सामने आ जाते हैं। Rapidly writing the keywords will enrich your content bank and save losing of some very original ideas. Here, rapidly writing the keywords will enrich your content bank. Now, what happens? The content that we are accumulating through brainstorming. अभी हमने देखा था कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने लिए बिंदु इकट्ठे कर रहे हैं। तो जब हम कीवर्ड्स लिखते हैं तो कीवर्ड से हमारा जो कंटेंट बैंक है, हमारा जो विषय के लिए हम सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, जो हम पिटारा बना रहे हैं विचारों का, बिंदुओं का, वो बहुत रिच हो जाता है। उसमें हमारे पास काफी पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड सेव लूजिंग ऑफ सम वेरी ओरिजिनल आइडियाज। और कुछ मौलिक विचार भी हमारे जो खो सकते थे, जो डूब सकते थे,
वो मौलिक विचार बच जाते हैं, क्योंकि मौलिकता जैसे झलकती है, जैसे ही फ्लैश होती है, वैसे ही हमें उसको पकड़ना जरूरी होता है. अरेंज the roughly written thoughts in a proper and logical manner. Now these thoughts, when they come to our mind, they should be arranged properly. A thought comes, then you write it down in the form of a keyword, and then after having written all the thoughts through brainstorming, you should arrange them in a logical manner. You should start grouping them into the type that they belong to. हमने विचार लाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग से हमने रैंडम थॉट्स को इनवाइट किया, और वो रैंडम थॉट्स हमने कीवर्ड के रूप में लिख भी लिए. हमारे पास बहुत सारे विचार इकट्ठे हो गए, बहुत सारे बिंदु इकट्ठे हो गए हैं. अब इन बिंदुओं को हमें तार्किक स्तर पर लिखना आरंभ कर देना चाहिए. Sorting and sifting will help you remove the unnecessary or digressive ones. Now the sorting and sifting process, the process of segregating them into different categories, this helps us to remove the unnecessary or digressive ones. Because sorting and sifting helps us to put them in the right category or right group. जब हम छंटनी करते हैं तो हम सारे एक समान विचारों को एक जगह रख लेते हैं, और उसके साथ ही जो अनवांटेड थॉट्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे पास जैसे थॉट्स आते हैं हम उन्हें रैंडमली लिखते चले जाते हैं. जब ये रैंडम थॉट्स लिखे जाते हैं तो उसमें कुछ, चाहे वो इक्का दुक्का ही हो, वो विचार हमारे टॉपिक से मेल नहीं खाते हैं, या अननेसेसरी होते हैं, या रेपिटेशंस होते हैं. ये डाइग्रेशन कॉज करते हैं, ये विषय से भटकाने में एक रोल प्ले करते हैं. जब हम सॉर्टिंग एंड सिफ्टिंग करते हैं, छंटनी करते हैं, तो हम ऐसे थॉट्स को जो डाइग्रेशन कॉज कर रहे हैं हटा सकते हैं. यू विल हैव द रेलेवेंट वंस लेफ्ट फॉर यूज. There will be more clarity in writing the theme passage. Now when we do the sorting and sifting, we keep only the relevant thoughts. जब हम छंटनी करते हैं तो हम उन्हीं बिंदुओं को रखते हैं जो काम के हैं, जो तर्क संगत हैं, और बाकी के जो बिंदु हैं जो काम के नहीं हैं उन्हें हम हटा देते हैं. तो फिर हमारे पास जो लास्ट में बिंदु बचते हैं थीम राइटिंग के लिए, वो वही बचते हैं जो हमारे लेखन में सहायक होंगे. भटकाने वाले बिंदु हटने के बाद हमारे पास केवल सहायक और सार्थक बिंदु बचेंगे. इसलिए सॉर्टिंग एंड सिफ्टिंग या छंटनी करना बहुत आवश्यक होता है, और ये टिप बहुत काम आती है. यदि आप करके देखें प्रैक्टिकली, व्यवहार में इसको करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि जब केवल काम के पॉइंट्स हाथ में आ जाते हैं तो लिखना कितना आसान हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज बिगिन द थीम पैसेज विद अ कीवर्ड रिलेटेड टू द मेन टॉपिक और आइडिया. दिस विल मेक इट इजी फॉर यू टू राइट. अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज दैट वी शुड यूज द वन ऑफ द कीवर्ड्स in the main topic or idea, where we begin our theme passage. When we begin to write a theme, at the outset, we should introduce at least one word which will take us to the main idea. जब हम लिखना आरंभ करते हैं थीम राइटिंग, तब हमें पहले वाक्य में या अपनी थीम राइटिंग के प्रारंभ में कोई एक ऐसा शब्द जरूर लिखना चाहिए शुरू में जो हमें आगे मुख्य धारा की तरफ ले जाए. दिस विल मेक इट इजी फॉर यू टू राइट. The reader will also follow it very easily. Now, as a writer, it will be easy for you when you use a keyword at the beginning. And for the reader, it will be very easy to read by following the keyword.
लेखन के समय आपके लिए ये सुविधाजनक हो जाती है टिप, क्योंकि आपने कीवर्ड यूज किया है तो आप उसी के अनुसार चलेंगे आगे। और पाठक के लिए कीवर्ड का प्रयुक्त होना उसके पढ़ने में, उसकी दिशा निर्धारित करने में बहुत सहायक होता है। मेक ग्रुप्स ऑफ सिमिलर थॉट्स एंड सेंटेंसेस। You may have many groups. Now, when you have done the brainstorming activity, then you should mark the words or sentences or thoughts into small groups. You should categorize them. जब आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली है और रैंडम थॉट्स इकट्ठे कर लिए हैं, तो आप उसके बाद उनके छोटे छोटे समूह बना लीजिए। और छोटे छोटे समूह जो होते हैं ये शब्दों के हो सकते हैं, वाक्यों के हो सकते हैं, विचारों के आधार पे हो सकते हैं। यू हैव टू थिंक हाउ यू आर गोइंग टू पुट देम इन अ ग्रुप और इन टू अ कैटेगरी। इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ sentences, it can be on the basis of the thought or idea that you are dealing with. ये इस पर निर्धारित करना आपका काम है कि आप शब्द को आधार बनाते हैं या वाक्य को आधार बनाते हैं या विचार को आधार बनाते हैं। You may have many groups. There may be as many as variety exists. Now the number of groups is not numbered or counted or fixed. कितने ग्रुप्स में, कितने समूहों में आप अपने विचारों को या शब्दों को कितने भाग में आप बांट सकते हो, यह पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कितनी वैरायटी मिलती है ये पढ़ने के बाद पता चलता है। जब आप उसको लिखने के बाद रैंडमली पढ़ेंगे और कैटेगराइजेशन शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने कैटेगरीज हैं, कितने भाग हैं जिसमें आप इसको बांट सकते हैं। एग्जाम्पल अबाउट द टॉपिक्स मेरिट्स, demerits, implications, improvements, suggestions, etc. Now, here we can understand this thing by the use of a topic. Suppose we take a topic, let our topic be the importance of discipline. Now, suppose we are talking on this point, and when we brainstorm, we write the positive, negative, all types of thoughts. Even if they are weird, we write all those thoughts. So, after having written the thoughts, we put them into different categories. For example, what are the merits of a certain topic? Then, what are the demerits? Because anything that has merit will have demerits. So, you make another category of demerits. Then, you make another category of implications or effect that it will have on an individual or society or nation, whatever the topic is. And what improvements can be made. How you can use the idea to improve. How you can use the points that you have thought to improve. And suggestions. Then you have suggestions as well. When you brainstorm, you always come out with suggestions. So if you have suggestion, definitely that needs for calls for another category. आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं उसके बाद आप छोटे छोटे भाग में, छोटे छोटे समूह में अपने विचारों को आवंटित कर देते हैं। इसका नंबर फिक्स्ड नहीं होता है। यहां तक हम देख चुके हैं। अब इसके बाद आप ये देखें कि एक उदाहरण के माध्यम से कि हम इसका कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। वो यूं कि हमने एक टॉपिक लिया, सपोज हमने टॉपिक ले लिया अनुशासन की आवश्यकता या अनुशासन का महत्व। जब हम इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट विचार आएंगे ही आएंगे। ऐसे समय पे हमें इन विचारों के भाग बनाने हैं, वर्गीकरण करना है। तो इसमें मेरिट्स क्या क्या हैं, अनुशासन के लाभ क्या क्या हैं, वो हमने एक जगह कर दिया। अनुशासन के हानि क्या क्या है, वो हमने एक जगह कर दिया। अनुशासन का इम्प्लीकेशन क्या है, उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या है, वो हम एक जगह कर सकते हैं। अनुशासन का इम्प्रूवमेंट क्या, हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कौन से सुधार के बिंदु हैं जो हम अगर करें तो उससे ये फायदा होगा। और सजेशंस, और अंत में हमारा अपना विचार क्या है या हमारे अपने सुझाव क्या हैं। क्योंकि हम कुछ भी जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो हमारे मन में सुझाव
आते हैं, नेचुरली आते हैं। हम प्राकृतिक रूप से सुझाव की ओर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास सुझाव होते हैं तो उनका एक अलग वर्ग बना लेना चाहिए। These were some tips. We will continue the tips in part 2 of the discussion, which we will see in the next video. So kindly see the next video for understanding the important tips that are to be underlined, to be followed while writing a theme. अभी हमने यहां पर कुछ आवश्यक बिंदु देखे हैं जो हमारी थीम राइटिंग के को सपोर्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अभी यहां पर इस वाले वीडियो में हमने कुछ बिंदु देखे हैं। कुछ बिंदु अभी इसके बाद शेष बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 है। तो कृपया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए, टिप्स के लिए वीडियो नंबर 2 भी अवश्य देखें। थैंक यू, धन्यवाद।